ओके, सो आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस देख लिए? मैम ऑन द 5th क्लास नाउ। मैं माय लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देख पाया हूँ, लास्ट सैटरडे संडे जो हुई थी। ओके, ठीक है। कारकास क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. Ma'am, the class 3, I mean, I have read, जो class 3 था, that was really awesome, really awesome. मतलब वो बहुत कुछ एक साथ समझ में आ गया. And अभी तो I'm on the class 5, so which is like I have done 30 minutes until now, 30-40 minutes. So I'll be ओके, continuing. तो ये आशा जी, समझ में आ नरेश जी? गया मैम. ओके ओके, आशा जी, नरेश जी, शिवांगी? I've just attended the recordings the live mostly, और मैंने कुछ recordings देखी थी, but मैं सारी नहीं देखी है। ये सब Dropbox में ही है ना जो तुमने लिंक शेयर किया था? हाँ 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 So हाँ, I'll वो watch. प्री, Yeah. It's just till ठीक है, 13 that I'm preoccupied. Then I'll start again. I'll pick up pace. ओके ओके ओके। मेरी मन में एक रिकॉर्डिंग से थी, सुननी बाकी तो हो गई। हाँ जी, क्या बोले नरेश जी आप? एक रिकॉर्डिंग रहती है मेरी, सुनना मैंने। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अम, आशा जी? हम नहीं मैम, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई मैं अभी तक। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट नो क्लास प्रॉब्लम। हम केंद्रस कर रहे थे मैम. हम्म, ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग 7 चरकारक यूज करते हैं 8? 8 मैम. ठीक है, तो ये डिबेट है श्री के एन राव और संजय रथ जी के बीच में। संजय रथ जी reckons predictions by using 8 कारकास, जिसमें राहु इंक्लूडेड है, और के एन राव जी जो हैं वो बोलते हैं that we need to go with only 7 चरकारकास। अब आप लोग के क्या व्यूज हैं? Ma'am, both works actually. Do you think we can use Sanjay Rath sir's concept conditionally? Uh, Conditionally means, ma'am? Meaning sometimes we can use it, sometimes we don't need to. Yeah, normally we have been taught to use it mostly for all Jiva Karakas, to use 8 Charakarakas, and for Hmm. all Ajiva Karakas, we go for 7 Charakarakas. Okay, see, this is actually not tenable because the same Karaka signifies both Jiva Karakas and the Ajiva Karakas also. Because let's assume Bhratri Karaka. So Bhratri Karika will signify father, bosses, gurus, father figures, people in authority, positions of authority over masses. But Bhratri Karika also signifies nature, small animals, domesticated animals, uh, and also Bhratri Karaka denotes documentation, paperwork. Okay, especially litigation related documentation. So I don't know what in detail what the rationale he has provided for
using one category for Jivakarakas and the other for Ajivakarakas. But anyway, let's not deviate for the moment. So, Karakas use करने आ रहे हैं आप लोगों को? Yes, ma'am, to some extent. हम्म थोड़ा सा हल्का हल्का confusion होता है. हम्म But I think it actually goes well when I'm looking at a certain charts. So when you, especially जो आपने बोला था ना वो आत्मकारका का केतु का frequency and then हम्म धनकारका का राहु का frequency. I think one हम्म more मातृकारका is also राहु का frequency. I think. हाँ. Now, So देखो, okay, Mashumi. See, there is one very important difference between Parashari significators and Gemini significators, barring Sthir Karak and Char Karak. That is one parameter of distinction between Gemini and Parashari. But in Gemini, there are joint significators also. For example, please answer this question. Which Karaka will you look at for, let's say, courage? If I have to, भ्रातृकारक. Atri, हाँ, ठीक है. What else? What else will you look at to assess the courage in a person? How For courageous is this person? Where will you look at now? third Besides the house, third house, besides the Bhratri Karak, what else will be the significator? Because courage will be Mars. governed by joint significators. Would it be Mars? No. ma'am, Rahu? third house. Mar is Sthir Karak, na? That is Parashari. Okay. Ma'am, third house. हाँ जी, बताइए. Ma'am, third house. Why third house? When we already have the Bhratri Karak. See, we will Okay. look at third house and Mars in Parashari, not in Gemini. We are learning Gemini over here, not Parashari. Okay, ma'am. So if Bhratri Karak is one significator of courage, where will you look for a joint significator of courage among Gemini significators? Hmm. Uh, I'm not understanding the question. Just I'm reframing. Is it that we are looking for a planet that is See, apart from the Bhatrikaraka or a house? no. Okay, let me rephrase the question. While making predictions with Parashari Paddhati, we use Sthir Karakas. Yes. Okay. Now, if you're using Sthir Karakas, we don't need Charakarakas. It is Charakarakas that distinguish Gemini Paddhati from Parashari. Yeah. Now, if I am looking at the planet sitting with the third highest degrees as Bhratri Karak, Hmm. Bhratri Karak alone will not reveal the courage quotient or the level of courage the native possesses. Okay. Okay. You are right. I think if Bhratrikarat is sitting with Rahu, will it show courage?
See, while using 7 significators, we are not even using Rahu. Okay. This is not about using 7 or 8 Charakarakas. I'm just asking you, suppose you have a chart in front of you and you are asked to assess the level of courage or the level of bravado the person is willing to show in this lifetime. मतलब डार्क कार्ड का भी हो सकता है। Charakaraka कैसे? यदि आप यही चाहते हो नहीं, भारतीय काका के साथ में कौन सा सेकंड होगा जिसमें करेज होगी। हाँ। हम्म। तो हाँ, बताइए कैसे? इसका रैशनल देख के मुझे बताइए। हाउ विल यू लुक फॉर अ जॉइंट सिग्निफिकेटर? देखिए, भ्रातृकारक जो है वो आपका सपोर्ट सिस्टम भी दिखाता है। भ्रातृकारक इज नॉट करेज अलोन। पर्सनल लेवल पे भ्रातृकारक आपको करेज दिखा रहा है, इंडिविजुअल्स करेज, बट भ्रातृकारक ऑल्सो शोज योर सपोर्ट सिस्टम, हाउ मच सपोर्ट you receive in your life. What is your support system like? मैंने एक चीज शुरू के लेक्चर्स में पढ़ाई थी कि आप जेमिनी से प्रिडिक्ट करते वक्त कोई भी कारका, a कारका is operating at multiple levels. You cannot leave any signification of a charkarak while making a prediction. So when you are looking at Bhratrikarak, that is a planet sitting with third highest degrees in your chart to signify courage, but the Bhratrikarak itself is your support system in life. Now tell me, how will you look at the joint significations of Bhratrikarak? एक तो आपका Bhratrikarak itself हो गया. Now, what will be the other significator? Joint significator कौन होगा? आत्मकारक। मैम ज्ञातिकारक, Okay, why Ganatikaraka? because it is the representation of the sixth house. So sixth house is the ability to fight against the enemies. The sixth house is your enemies also, not your support system. Huh. They are enemies, but isn't it more like absence of support system is enmity, absence of friendship is enmity. तो सोच के बताइए. See, this is something that relies completely on reasoning. If the planet sitting with the third highest degree becomes your Bhratrikarak to indicate the amount of courage you have, how will you find the joint significator, which is the support system? When I say Bhratrikarak is also your support system, see, individual courage आप देख लो Bhratrikarak planet से, that is fine. How will you
Look at the support system in your chart. Hmm. दिमाग नहीं चल रहा है मैम. Thinking of all combinations, but एक नातिकारक का दिमाग में आया, and then when Naresh ji said this दारकारका, so I'm thinking of a shadow self, but फिर उस हिसाब से फिर आत्मकारका भी हो सकता है. So getting into all combo. The Atmakarak cannot be a support system. That Atmakarak is you, right? It's Yeah, you yeah, yourself. yeah. How will you locate the higher octave of Bhratrikarak, which is the support system? The higher octave or the higher frequency of Bhratrikarak is your support system, not courage. Courage is the first frequency of Bhratrikarak. Okay, Now that you are non-living saying it, is it Hmm. Bhavat Bhavam system? So Putrakaraka? See, we will not use Bhavat Bhavam in Gemini. Ah, okay, Again, we use Bhavat Bhavam in Parashari. okay, Okay, okay. this is an important concept to make predictions with Gemini. Hmm. आप लोग अपनी चार्ट में भ्रातृकारक प्लेनेट देखिए पहले, अभी पता चल जाएगा. Ma'am, चलिए. Venus. वीनस किसका है? मेरा है मैम. आपका वीनस है. ओके, नरेश जी हाँ आपका क्या है? 8 मैम. चारकारक, 8 चारकारक यूज करिए और मुझे बताइए कि आपका थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन सा है? Is Naresh ji here? I think logged out. जस्ट अ मिनट. हाँ. See, it is my solemn advice that do not rush through Gemini. Gemini is a little tricky in places. Because what happens is we try to subconsciously we do this. We don't do it deliberately, of course. We try to impose Parashari concepts while making predictions with Gemini. That will defeat the whole purpose of Gemini being distinct from Parashari. ठीक है? Yeah, ma'am. तो नरेश जी, यू हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग. अभी तक हम भ्रातृकारक पे ही सब लोग सर्कस में हैं. अच्छा, निकिता मैम इज हियर. ओके. हाँ, भ्रातृकारक का हायर ऑक्टेव आप कैसे देखेंगे बताइए.
अच्छा, Maushami, where Yes, do ma'am. you reach if you travel 11 houses away from Venus? I mean, Sorry, 9 houses away from Venus in your chart. If you travel 9 houses away from Venus in your chart, where do you reach? to my 11th house. 11th house. Okay. Yes, Okay. Venus आपका कहाँ पे? 3rd house. Venus is in 3rd house. Okay. And 9th house from Venus is your 11th house. 11th house. Okay. Who is the 11th house ruler? Venus itself, Taurus. Venus itself. Okay. ठीक है. And I have Now Rahu there. you have Rahu there. Okay. So for you, Rahu rules your 8th house, Yes, ma'am. right? Now, see, whenever you need support, okay, see, this is the higher frequency of Bhratrikarak. You will talk to people who have departed, left this world. Okay, you will often ask them to help you, Okay. and they will, because just because 8th lord is sitting in 11th house. Okay. Okay, but you have to travel 9 houses away from the Bhratrikarak itself, the Bhratrikarak Grah. When we say Bhratrikarak, the first octave or the first frequency is 3rd house, second frequency is 9th house. Huh. So to locate support system in my chart, I need to travel 9 houses away from the Bhratrikarak planet. Okay? Okay. Okay. So जिसका भी जहां पर भ्रातृकारक है, the Hmm. person has to travel 9 houses away to see where the support lies. Yes, yes. See, Bhratrikarak is operating at multiple levels. Why? Again, the see, now here you can bring Parashari, but again, it's a very limited application. Bhratrikarak shows multiplicity. Huh. Okay. Why? Because it naturally rules the 3rd house. Okay. Now, there are multiple support systems in a chart. Okay. Okay. How much courageous you are, 3rd house, but that is a very tiny, see, that is what is visible to the world. Okay. Okay. People around you can see how courageous you are, or whether you are courageous or not. But invisible support, 9th Hmm. house, 9th house forces, deities cannot be seen. Okay. Okay. But I have a question on this. Hmm. Now, again, this will be a Parashari concept. Probably you will be able to distinguish. For Yeah, where every we have to, Rashi, yeah, see, where we have to apply it. See, this is not even Parashari, this is Kalpurush. acha, ठीक है, maximum exposition of Parashari, maximum exposition of Vedic Jyotish is in Parashari. But this is a concept from Vedas only. This is not a concept from Parashari. In fact, this is a concept from Upanishads. Okay. Uh, there are many sutras, Shrutis, Brahman sutras, Rakshas sutras, बहुत सारे sutras हैं. ये वहां से acha, निकाला हुआ है. ठीक है. okay. Now, So, my question was कि अगर hmm, किसी का वो कोई भी पोजीशन पे वो बाधका हुआ, तो will the Bhatrikaraka now get the support or will get a blockage in that support? yes, now there will be a blockage. Okay. But again, see, you can use this only for limited prediction because
there are concepts like Argala, Kolaka in Gemini itself. So Yeah. that Badhak can get neutralized also, nullified also, if Argala is working. Okay. Okay. Okay, नरेश जी, आशा जी, बताइए, शिवांगी, आप लोगों का भ्रातृकारक ग्रह मेरा है? मर्क्यूरी है, ओके, मर्क्यूरी है। हाँ, और वो आपका 11th हाउस में है, सो 9 प्लेसेस अवे विल बी 7th हाउस। तो 7th हाउस का रूलर वीनस, वो 11th हाउस में ही बैठा है मर्क्यूरी के साथ ही और मून के साथ। हाँ, तो सपोर्ट सिस्टम इज अगेन, सपोर्ट सिस्टम इज एल्डर सिस्टर एंड सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो हस्बैंड इज सपोर्टिव, ठीक है, हस्बैंड इज, बट Basically, नाउ we see the house 9 places away, and we also see where the lord of the 7th house is sitting. Both we see. yes, we will see. You have to travel 9 houses away from 11th house. हाँ, ठीक है, तो आप वीनस पे आ गए ना? हाँ जी। हम्म, ठीक है। So now look at the karakas sitting with bhratrikarak because there is a conjunction, right? दर कारक एंड नाती कारक। दर कारक एंड गनाती कारक, तो अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, हाँ होता है ना? लेकिन यह लड़ाई झगड़ा किसके बीच में होगा? लड़ाई झगड़ा बड़ी बहन और हस्बैंड के बीच में होगा, हाँ क्योंकि वो होता एक साथ है। बैठ गए, है ना? होता है, हाँ। हाँ हाँ, उन दोनों में छिड़ी रहेगी जंग, कुछ बट दूर दूर रखो दोनों को। हाँ, इंडिविजुअली दे विल बी सपोर्टिव टुवर्ड्स यू, दैट इज ट्रू, दे आर बोथ हाँ, सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, बट आपस में बट थोड़ा आपस में उनका नहीं होता बनेगा रहा है। ये कोई चीज। बात नहीं, दैट्स ओके, हम्म, यू नो हाउ टू मैनेज इट। हाँ, ठीक है। ओके, नरेश जी। Madam, for my is Jupiter is a जुपिटर, Bhatikaka and it's in this fifth house. It's in the यस, fifth house. And my Lagan Lord is the Lagan is becomes the ninth house. ओके, सो नरेश जी, हम लगन पे पहुंच जाएंगे, राइट? Yes. नाउ लग्न लॉर्ड इज ओके, Lagan लग्न Lord is लॉर्ड in इज the sixth house. 6th हाउस, ओके। तो see, all those people who are working under you, relatives, this is actually a good placement. ये uh, तो खुद का सपोर्ट सिस्टम है, अगर Oh. लगन ये now इस यहाँ पे ना, this is, so see again, he is getting support from people because he takes the initiative to support those people. राइट। This is like a reciprocity, ये रेसिप्रोसिटी वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे। इट इज बिकॉज स्पेशली फीमेल रिलेटिव्स को सपोर्ट मिलेगा आपका, छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को आप सपोर्ट करेंगे, Yes. राइट? Yes, sir. हाँ, तो रेस्ट अश्योर्ड आपको भी उनका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो सी नाउ इन दिस केस, इवन दो दिस इज द 6th हाउस, बट क्योंकि यहाँ पे भ्रातृकारक की क्वालिटीज आ गई, तो ही विल रेयरली हैव एनी एनिमीज, क्योंकि वहां ब्लेसिंग आ गई है 9th हाउस, भ्रातृकारक से 9th हाउस की, है ना नरेश जी? वेरी फ्यू एनिमीज और नो एनिमीज, राइट? Yes, ma'am. Yes. हाँ, जो होंगे भी ना छोटे मोटे, Very few मतलब enemy. वो जो होंगे भी छोटे मोटे, वो कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेंगे, Yes, ma'am. अपने आप ही कट जाएंगे। ओके, एनीबडी एल्स, एनीबडी हु वांट्स टू वॉलंटियर विद भ्रातृकारक? मैम माइनस जुपिटर और हाँ जी मैम। हाँ माइनस जुपिटर, उससे 9th हाउस स्कॉर्पियो साइन इन 6th हाउस। ओके, जुपिटर कहाँ पे है मैम, कहाँ बैठा है?
10th हाउस में। ओके ओके ओके, तो जुपिटर पाइसेस में है। हाँ जी। हाँ ठीक है, जुपिटर पाइसेस में है और आप स्कॉर्पियो पे आ जाइए। स्कॉर्पियो कहाँ आ जाएगा आपका? 6th हाउस। 6th हाउस, ओके। 6th हाउस में कौन, कोई ग्रह बैठा हुआ है? हाँ, वीनस वीनस है वहां पे। वीनस बैठा हुआ है, ओके। बड़ा बच्चा बहुत सपोर्ट करेगा, राइट। राइट? या इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा है उससे। हाँ, बड़ा बच्चा करेगा और झगड़े भी सुलझाएगा। हाँ, होता है। ठीक है, यस। ओके। और कोई बचा? नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों के? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो भ्रातृकारक one by one when we are visiting karakas, because Gemini Paddhati is based on the concept of frequencies, every frequency. So when I invoke the term Bhratrikarak, I am invoking all the frequencies of Bhratrikarak. Third house, ninth house, multiplicity, okay, multiple frequencies operate on the level of Bhratrikarak. Because Bhratrikarak always functions with the base energy of Mercury. Base energy is Mercury. Okay. But Mercury cannot create a support system. सपोर्ट सिस्टम जुपिटर की फ्रीक्वेंसी से ही आएगा। मतलब कि आप भ्रातृकारक से 9th हाउस पे जाइए। देखिए, 9th हाउस से जब आप जाते हैं, फ्रॉम द भ्रातृकारक व्हेन यू ट्रेवल 9 हाउसेस, वो सिंपली आपको ये दिखा रहा है कि हाउ यू हैव अर्नड इट, व्हाट सपोर्ट सिस्टम यू हैव अर्नड। 9 houses from the Bhratrikarak Grah shows your larger support system जो आपको आपके भाग्य से मिला है। ठीक है, क्योंकि भ्रातृकारक थर्ड हाउस वो फर्स्ट लेवल पे लेके चल रहा है, थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस। ठीक है, अब फॉर्मेटिव इयर्स में जो आपके यार दोस्त हैं जो बनते हैं फॉर्मेटिव इयर्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अडल्ट एज, आई एम टॉकिंग अबाउट टिल द एज ऑफ 16 17, 16 मान के चलिए। फॉर्मेटिव इयर्स में जो आपके दोस्त बनते हैं वो भ्रातृकारक प्लेनेट दिखाता है। आप लोग भ्रातृकारक देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का भ्रातृकारक 11th हाउस में है तो वो नेबरहुड से ज्यादा अपने बड़े भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ, जो उससे उम्र में बड़े होंगे, उनके साथ खेल कूद के बड़ा हुआ है, उन्हीं से दोस्ती है उसकी। प्राइमरी फ्रेंडशिप्स आर फोर्ज्ड विथ सिबलिंग्स इन द फैमिली। अगर भ्रातृकारक थर्ड हाउस में है तो नेबरहुड के यार दोस्त, 5th हाउस में है, थर्ड 4th हाउस में है तो जो स्कूल में बनते हैं। ठीक है,
तो आप लोग भ्रातृ कारक की पोजीशन देखिए, वो आपके बचपन के दोस्त दिखाता है। अपनी अपनी चार्ट में देखिए। Yes, ma'am, that's true actually. Mine तो you only told because it's in the 11th house. So of course I was like my cousins और मतलब सादगी के साथ खेल कूद तो नहीं, but with her like she was my childhood friend only. For me she's always been more of a friend. And elder sister तो Right. खैर मैं उसको साध्वी बोलती हूँ, तो I don't know if she ever feels like an elder sister. राइट। नरेश जी आप देखिए, आप भी ज्यादातर रिश्तेदारों में, मतलब जो कजिन्स वजिन्स बच्चे हैं, मामा मामी, मैटरनल साइड से बहुत सारे आपके रहे होंगे, Yes, madam. Right. राइट? Yes. मैटरनल फैमिली में जितने कजिन्स होंगे वो सब बचपन में उनके साथ बहुत यारी दोस्ती, मतलब उन्हीं के साथ रही होगी। Yes, madam. ठीक है, और कौन बचा? आशा जी। मैम मेरा 10th हाउस में है, तो फिर पापा की फैमिली से ज्यादा जुड़ाव, मतलब उनके सिबलिंग्स से थोड़ा था मेरा। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, तो ये फिट बैठ रहा है ना। यस मैम। हाँ, अब आगे मुझे नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस बताइए भ्रातृ कारक के। डॉक्यूमेंटेशंस, और क्या? ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स, ओके, व्हाट एल्स? Ma'am, wouldn't everything that Mercury represents will also be represented by that? Higher studies, in one of the videos you had mentioned, higher studies is also Bhatrikarka because it has the ninth house significations. Yeah. Just a second, I hope this recording is working. Yeah, I'm using this for the first time, so just a minute. Okay, yeah. हाँ, बताओ मौसमी, बताओ। I was saying in one of the videos you mentioned Bhatrikaraka is also about higher education. Right, yeah. So वो एक हो सकता है if it has that significations of ninth house, then it is also our belief system, our subconscious mind, like वो third ninth के axis पे जो भी आ रहा है। ओके, भ्रातृ कारक का, वेरी राइट, भ्रातृ कारक का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेशन है, and that is your karmas towards all those people who have departed from your lineage. Okay, one very important signification of Bhratri Karak is discharging through the Bhratri Karak planet. You will see how, or rather what is the karma you need to bear for people who have departed, who are from your lineage, who belong to your lineage, especially your paternal family.
and what you need to do for them. देखिए, अगर हमारे lineage से लोग, obviously every lineage people are taking birth and people are dying, but Bhratrikarak shows the most important karmas that must be discharged on behalf of those who have departed from this world. जो गुजर गए. भ्रातृकारक also shows thoughts and ideas that nature gives us constantly through the day. Running thoughts. Look at the Bhratrikarak Greh. हाँ जी, भ्रातृकारक ग्रह देखिए, और जो अभी हमने डिस्कस किया है, कर्मास ऑफ डिपार्टेड पीपल, karmas of departed souls that fall on our shoulders. Yeah. मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ. नहीं नहीं Ma'am, कुछ. what I'm trying to understand is, I understood what you said, but I'm confusing it now with Gnati Karaka, because one of the videos we also learned that all the disembodied members of our family are also fulfilling their karmas through that Gnati Karaka. तो जब Gnati Karaka की दशा चलती है, तो that's why it's a havoc. See, अब Ganati Karak is significator of deceased paternal ancestors, okay, not karmas of deceased paternal ancestors. okay, they represent the deceased Yes. karma, Yeah. and Bhatrikaraka represents the karmas. Karmas of deceased, all deceased ancestors. All those who have departed, all members of our lineage. Lineage means to whom we are related through blood. Okay, okay. 10th Whosoever from the 6th. bloodline, हाँ, lineage को आप bloodline बोलिए, bloodline. ठीक है? Okay, okay, understood. ठीक है? Okay, okay. Now look at the Bhratrikarak Greh and make predictions for karmas that must be discharged on behalf of departed souls from our lineage. अब देखिए, आपको पता चल जाएगा. See, the kind of support system we get is nothing but the remainder or the balance of what we get in lieu of karmas of departed ancestors being discharged. Now is it understood? जितने कर्म हल्के होंगे, जितना कम लोड होगा डिपार्टेड एंसेस्टर्स के कर्मा का, डिपार्टेड लोगों जो हमारे लीनियज में, जो हमारी ब्लड लाइन में है, उतना ही आपका सपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा. जितना लोड आपके ऊपर होगा, सपोर्ट सिस्टम उतना कमजोर होगा. ठीक है? अब देखिए. हाँ आशा जी, अब देखिए.
देखना कैसे है, मतलब प्लेसमेंट देखना है, बट हाँ, प्लेसमेंट अभी आपने देखा था प्लेसमेंट, ना, हाँ भ्रातृकारक वो को देखिए। हाँ। 11th हाउस में है हम्म। मर्क्यूरी, और डर कारक वीनस, और नाती कारक मून के साथ है। हम्म। तो जब तक लीनियज के डिपार्टेड एंसेस्टर्स का कर्म नहीं खत्म होगा, फ्लूइड्स की प्रॉब्लम आएगी, अनरिजॉल्वेबल अनसॉल्वेबल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि 11th हाउस है। तो ठीक कर्म है। क्या है? कर्म क्या है? नहीं, मतलब कर्म तो मैं ऐसे थोड़ी ना आसानी से, दैट इट्स नॉट दैट इजी ना। कर्म तो आपको ये पूरा, जब आप पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा क्या कर्म है एग्जैक्टली। राइट, ओके। बट एक आइडिया लीजिए कि आपको क्या दिखा रहा है भ्रातृकारक आपके एंसेस्ट्रल कर्मों के बारे में। राइट, ठीक है। हम्म। Ma'am, why fluid issues? No, because she has moon, no, she has moon नाती there. कारक इज मून, तो Okay, फ्लूइड। हम्म। okay, okay. ओके। तो ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। Yes, ma'am. And how will be that second signification be applicable? Like if she has her Gnatikaraka, that sorry, Bhatrikaraka in the 11th house, then her हम्म। thoughts and ideas हम्म। would constantly be for the 11th house matters. Yeah, she will be preoccupied with concern for her elder sibling, husband, जो भी वहां बैठा हुआ Okay, okay. है ना, मदर। एंड because 11th house shows regular income, and because Bhratri Karak is sitting there, she can work with hands and generate a very good income. यस यस, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। हाँ, मर्क्यूरी की दशा आते आते वो काम अच्छा हो जाएगा। बाप रे, लगे 10 साल लगे रहो, खेलते रहो अभी गेम। So Ashaji's is a 10th house. So in हम्म। that case, वो Jupiter है. हम्म। So digestive issues until she fulfills her karmas. See, there are some money related issues in Okay. father's family. Okay. Money related issues. Okay. Wealth. ठीक है। Okay. आशा जी, नरेश जी, आप लोग हैं यहाँ पे? यस मैम। Yes, madam. Yes, yes, yes. ठीक है। ओके। ओके, मूविंग ऑन। अमात्य कारक। अमात्य कारक से सूक्ष्म सिग्निफिकेटर्स आप कौन से देख सकते हैं? अच्छा, आप लोग अपने अपने अमात्य कारक ग्रह देखिए, सेकंड ग्रह सिटिंग विद सेकंड हाईएस्ट डिग्री, मुझे बताइए। Jupiter, ma'am. योर्स इज जुपिटर। ओके। माइन इज सैटर्न। ओके, ठीक है। Mine is also Saturn. ओके, ठीक है। ओके, नाउ मौसमी, Yes, ma'am. go 10 houses away from
your Amatya Karak Grah? Second house, Leo. Okay. ठीक है. And there is no planet over there. No, but Sun sits with Jupiter in the fifth house. Sun sits with Jupiter in the fifth house. Okay. Okay, so what is the Charak Karaka of Sun and what is the Charak Karaka of Jupiter? Jupiter is Amatya Karaka, Sun is Dara Karaka, and Mercury is in seven Charakarakas, Putra Karaka. No, no, In no. the I'm fifth just house. talking about 8 Charakarakas. Among 8 Charakarakas, what is the Karakatva of a Sun? Dara Karaka. Darakaraka. Okay. And among 8 Charakarakas, what is the Karakatva of Jupiter? Amatya Karaka. Amatya Karaka. Okay. ठीक है. So from your Amatya Karak, 10 houses away is Leo. Yes. Okay. But I have And Mercury, Sun, Jupiter, Ketu in fifth house. Mercury, Sun, Jupiter, Jupiter. Ketu, fifth house, Scorpio. Okay. Amatya Karaka is the counselor, right? The advisor Hmm. of our lives. Cosmic counselor. Yeah. Cosmic counselor, yeah. Okay. ठीक है. Now, what prediction will you make for this, Moshumi? How will you get money will be seen from the fifth house. How you will generate, or rather, how, what your source, what your family's source of income is will be seen from the fifth house now. Tell me. My families, my birth families. Yeah. My birth family source of income was my father's government job. Fifth house, आगे. That's what I'm saying. My birth families, Hmm. the source of income was my father's job, Yeah. which Why? was a Because government Sun, job. because Sun, Jupiter, see, Sun, Jupiter are sitting in the fifth house, and you can clearly see how father is supporting the family through his government job. Huh. Okay. Yeah. So Amatya Karak will always show the kind of karma that is saddled on one's immediate family to earn resources. Who is doing it? Obviously, Sun, Jupiter, fifth house, Leo, everything is indicating Sun, Okay. government. Okay. 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 But Okay. हाँ हमने निधि वो क्लास में class 3 of the recording में you had mentioned that Amatya Karaka represents second house and 10th house. Yes, that is why you went 10 houses away from Amatya Karak Grah. Just like you went 9 houses away from Bharatri Karak Grah, now you will go 10 houses away from Amatya Karak Grah. So now that it represents our own 10th house, it also shows our own career. See, when you have to look at your personal wealth, Acha. look at Amatya Karak Grah only. Don't go 10 houses away. Okay, 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 okay. 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 First frequency is personal frequency. Acha, second frequency is the supporting frequency. Yes. Okay.
हाँ तो निकिता मैम, हाँ basically if Saturn is in the 8th house, then it will give me Leo, which is 10 houses away, 5th house. 5th house is empty. And Sun is sitting with Jupiter and Rahu in the 12th house in Pisces. you go So 10 houses away from 8th house. it's 5th house, Leo. Okay, and where is sun? 12th house, Pisces. Jupiter, Rahu sitting with it. Jupiter, Rahu. Okay, banking, father, banking. Yes, but how did it show banking in Sun Jupiter is banking? I understand. What about does the sign play a role here? Investments, banking में Yes, accounting, yes, investments, yes, right? yes. ठीक है, हाँ, got it, got it. okay, In fact, most of after the partition time, or most of the family members went into banking only. right, right. ओके, आशा जी, नरेश जी, आप लोग भी देखिए। और निकिता मैम ने मुझे मैसेज किया, 1 मिनट। लेट मी हैव अ लुक। Oh, Saturn sitting in second house in Scorpio. ये भ्रात अमात्य कारक है कि भ्रातृ कारक है? ओके, लेट मी आस्क हर। हाँ नरेश जी, आप अपना बताइए। Saturn sitting in 9th house. Saturn sitting in 9th house, ओके। तो 9th हाउस से आप 6th हाउस पे चले जाइए नरेश जी। 9 से 10 4th हाउस होगा ना, 4th हाउस पे जाएंगे। 9th में बैठा है कि 9th में सैटर्न है सर का। Yes, yes, yes. नरेश जी, हमको अमात्य कारक देखना है, भ्रातृ कारक नहीं, अमात्य कारक। मत्ते देवता हूँ मैडम, अच्छा, अमात्य कारक आपका कहाँ पे है? तो उसमें 9th हाउस, या ओके। तो 9th हाउस से आप 10th जाइए। ट्रैवल 10 हाउसेस अवे फ्रॉम 9th हाउस, तो 6th दैट इज हाउस आ गया ना? 6th हाउस आ गया, 6th हाउस। 6th यस हाउस आ गया। यस। हम्म तो ये फादर का बिजनेस है, फादर का स्टार्ट किया हुआ फैमिली बिजनेस है। यस मैडम, यस, हाँ, यस मैडम, यस। राइट, ठीक है। आप नरेश जी बर्ड फीड सबसे ज्यादा बनाते हैं क्या? बर्ड फीड, एनिमल फीड, यस, यस मैडम, मैक्सिमम बर्ड फीड बनाते हैं? बर्ड फीड बनाते हैं, मैक्सिमम बर्ड फीड बनाते हैं। बर्ड फीड ना, क्योंकि वो या मर्क्यूरी एक्वेरियस है, मर्क्यूरी या एक्वेरियस बर्ड या फीड होगा। हाँ यस, यस मैडम, मैं पोल्ट्री का फीड पे ज्यादा बनाता हूँ। हाँ, वही मुझे लगा ना, मर्क्यूरी एक्वेरियस तो बर्ड फीड। ठीक है, ओके। आशा जी, मैम मार्स इन 12th हाउस, तो उनसे अगर 10th हाउस पकड़ू तो 9th हाउस आता है। दैट इज राशि है एक्वेरियस, राहु। राहु, ओके। वो राहु बैठा है 5th हाउस में। राहु बैठा है 5th हाउस में। ओके। फादर ने बहुत सपोर्ट किया होगा, लाइक अ बिग ब्रदर, क्या है? क्या नहीं नहीं, किसके पापा ने सपोर्ट में, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं, देखिए, आपका अमात्य कारक मंगल 12वें घर में है ना? 12वें घर में रेट्रो मंगल है। ओके, आप वहां से आ गए 10 हाउसेस अवे, यानी कि 9th हाउस। 9th हाउस में आ गए। तो अब ये फादर का वो हो रहा है, फादर का वो दिख रहा है यहाँ से, जैसे नरेश जी के चार्ट में था फादर के हाउस की फील्ड। तो
9th lord is sitting in 5th house. Yeah. Okay. तो फैमिली को जो इमीडिएट फैमिली को तो फादर ने ही आपके सपोर्ट किया होगा, जो आपकी बर्थ फैमिली थी। यू मीन टू से कि दादाजी ने सपोर्ट किया? नहीं, आपके अपने फादर ने बहुत शादियां वादियां कराई होंगी। यस यस यस, वेरी ट्रू। हाँ, हाँ, हमला कि वो ब्रोकर नहीं थे, ही वाज एक्चुअली पहले वो एग्जीबिशंस लगाते थे कपड़ों का, उसके बाद वो यार्न ब्रोकर हुए। तो ऐसा लिब्रा साइन है ना, तो वो बिजनेस, कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरी फैमिली को सपोर्ट किया होगा, छोटे भाई बहनों की शादियां बहुत, कराई होंगी। यस यस, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ गया, यस मैम। ये कैसे लगाना है? मुझे Yes, मुझे ma'am. ये छोटे भाई बहनों का को सपोर्ट, ये वाला नहीं पार्ट समझ आया बस। आशा जी आप बताइए, इसको असाइनमेंट की तरह ले लीजिए कि अगर आप अमात्य कारक से 10 हाउसेस अवे 9th हाउस में आ गए और 9th हाउस लॉर्ड आपका दिख गया 5th हाउस में, तो ये कैसे दिख रहा है बताइए? अकॉर्डिंग टू मी वहाँ लिब्रा साइन है, तो वो वैसे भी शादी को डिनोट करता है। और छोटा भाई हम्म, है जो वो थर्ड हाउस से, तो थर्ड टू थर्ड, तो छोटे भाई बहनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उनकी पूरी फैमिली में शादियां बहुत करवाए। मतलब किसी को भी आज के डेट में भी कोई बोलता है भाई आप ही बता दो, कोई लड़का है तो, कोई लड़की है तो। ओके, अब समझ आ गया। तो छोटे भाई बहनों के बिजनेस में भी ऐसा है, ये भी डिनोट कर सकता है। हाँ, मीन्स एक्चुअली उन्होंने जैसे खुद ने शायद कम कमाया होगा, लेकिन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी है कि भाई इसको पूछ ले, से बात कर लो, यहाँ पे आपकी बात हो जाएगी, यहाँ कर लो, यहाँ। मीन्स लोगों को कॉन्टेक्ट दे दे के उनको काफी सपोर्ट किया, काफी आगे बढ़ाया। हाँ, सही है, ठीक है, समझ आ गया, थैंक्स। ओके, अच्छा। सिमिलरली मौसमी, नरेश जी, सबको क्लियर है? यस मैडम, यस। है ना? इसको कैसे अप्लाई करना है ये देख लीजिएगा। जब आप पर्सनल सिग्निफिकेशंस पे कोई अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लीजिएगा, बिकॉज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज यू, related to you only. See, frequencies like मात्य कारक, भ्रातृ कारक, पुत्र कारक, any कारक, the first level frequency pertains to आत्म कारक, that is me myself. ठीक है? ascended frequencies मतलब उसी कारक की ascended frequencies से आप बाकी के रिश्तेदारों को देखेंगे। अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया ना, बस उतना लेके चलिए, मैम अभी के लिए उससे काम चल जाएगा। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे जी। नाट्यकारक रेट्रो मास इन 12th हाउस है, तो इवन आई डोंट वर्क, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो जो जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे किए हुए हैं, तो वो मैं ऐसे सब इन्वेस्टमेंट वाला धन, लाइक वो मुझे डिनोट करेगा, इस तरह से लेना है उसको? हाँ, वो आपके नाम पे है ना सारा। हाँ हाँ, दिखता है सब। मंगल का, हाँ, मंगल आपका अमात्य कारक है हाँ ना? ओके, तो उसका देखिए, इसमें ना आप कभी भी अपने नाम से मत इन्वेस्ट करिएगा। रनिंग मनी जो है ना, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मंगल जो आपका 11th लॉर्ड है ना, हाँ जी, तो यहाँ पे पैसे के नुकसान होने के चांसेस हैं। राइट। लेकिन आप मंगल के एक बार डिस्पोजिटर को देख लीजिए, लेकिन ये जेमिनी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। आप मंगल का डिस्पोजिटर देखिए क्या है। वीनस है जो हम्म, बैठा है स्कॉर्पियो में। हाँ, वीनस कहाँ बैठा हुआ है? स्कॉर्पियो में एग्जैक्ट 7th हाउस, मतलब सामने।
ओके 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 ओके। अम, देखिए इसमें ना ये जो चीज दिखाता है इसमें काफी पैसा जाएगा एजुकेशन पे, बड़े बच्चे के एजुकेशन पे। ऐसे बहुत तो नहीं यहाँ पर, ठीक है, एजुकेशन जो उसे किया उस हिसाब से हम्म। कर रही, लाइक शी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट एल्स, जो पढ़ाई की उसका वो नहीं। हाँ, क्योंकि वो 12th हाउस से कनेक्ट हो गया ना। हम्म 12th और 5th का रिलेशन बनता है तो यूटिलाइज नहीं हो पाती है पढ़ाई, मतलब आप पढ़ने कुछ और जाएंगे, करेंगे कुछ और। ये राइट, करेक्ट, दिस इज इवन फॉर मी ट्रू। जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ नहीं किया है। हाँ, ये वही कॉम्बिनेशन है। और चलिए ठीक है, तो इस इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैं एक चीज फ्रैंकली बताती हूँ, जेमिनी इज अ टोटली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड प्योरली ऑन फ्रीक्वेंसी। जो कुछ बुक्स में लिखा है बहुत सारा रबिश लिखा हुआ है, जो आप अप्लाई करेंगे तो वो कभी प्रिडिक्शन देगा नहीं, बिकॉज उन्होंने उसको साइंस की रेल्म से हटा के उसको, उनको ये दिखाने की कोशिश की है जैमिनी ऋषि को कि वो फिलोसोफर है। ही इज नॉट अ फिलोसोफर, ही वॉज नॉट अ फिलोसोफर एवर। ठीक है, जैसी साइंस में फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं, केतु की फ्रीक्वेंसीज मतलब frequencies which are only rising or ascending higher and higher and higher in the order of all frequencies। पूरा जेमिनी सिस्टम उसी पे बेस्ड है। जेमिनी हैज नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ फिलोसफी। जो वेदों का बहुत ही लिमिटेड पोर्शन है, सैक्रिफिशियल पोर्शन ऑफ वेदास, जेमिनी ऋषि ने उसी पे बस थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल एक ट्रीटाइज लिखी है, दैट्स ऑल। अदरवाइज he tried to make predictive astrology based completely on physical frequencies interacting with non-physical frequencies, मीनिंग जो इनविजिबल रेल्म्स हैं और जो मटेरियल रेल्म्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सन को पकड़ के नहीं चला। ठीक है, सन जो है, सन सन इज द डोमेन वेयर ऑल फ्रीक्वेंसीज डिसॉल्व। वहां सन के आसपास कोई फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है, बट एब्सोल्यूट की भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी केतु है, वेयर एवरीथिंग डिसॉल्व्स इनटू अ ब्लैक होल। सो उसको आप, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको एक बुक है, मैं आप सबको बता देती हूँ, वो पढ़िए, आपको जेमिनी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमित गोस्वामी की बुक्स पढ़िए। ही इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, ही इज अ फिजिसिस्ट। अब पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है, थोड़े कार्टून जैसे हैं बट ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। ठीक है, उनकी कोई भी बुक पढ़िए, उनकी एक बहुत फेमस बुक है गॉड इज नॉट डेड। ठीक है, तो नहीं भी आप लोग पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। I'll just be taking a 1 minute restroom break. I'll be back. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैम जी।
मैम जस्ट क्रॉस चेकिंग समथिंग। मैं अभी या वो हम जेमिनी का कोर्स कंटेंट देख रही थी, सो वी आर ऑन दैट फोर्थ पार्ट। जब मैं ऊपर से वो फर्स्ट मीमांसा सूत्रास का वो मुझे समझ में आ गया, द ब्लैक होल कॉन्सेप्ट दैट यू एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, या वो समझ में आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द नैसर्गिका एंड द चरकारिकास वो भी समझ में आ गया। दिस what that we are doing in that fourth chapter, ये भी समझ में आ गया। खाली मुझे कंफ्यूजन किस बात का ये हो रहा है कि ये ये बहुत सारा नॉलेज है ना, मतलब इट्स इट्स अ हम्म इट्स अ वास्ट नॉलेज। सो बाकी बाकी जो है फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, इट इज knowledge, but it is more of understanding वो backstage to See, get what you are calling, I got you, Mashumi, because I've been through the same feelings. See, when you are predicting with Gemini on autopilot mode, we tend to introduce Parashari concepts because autopilot पे Parashari है, ठीक है, हम I'll सबके just be दिमाग में। disturbing you guys. निकिता मैम का मैसेज आया है मुझे, या आपको भी? आई गेस शी इज वेटिंग टू बी लेट इनटू द Zoom मीटिंग। अरे पर यहाँ पे तो, ओहो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ शिवांगी, चेक करो। निकिता मैम, आर यू हियर? आई थिंक ये विपुल बेरी के लैपटॉप ओके से। ओके, या ओके। सी, okay, so coming back, I can see her here. Yeah, she's here. So, Maushami, to answer your question, अभी जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं बोलूंगी, you might be feeling a bit lost with what we just did a while ago. समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ ये शायद आपको किसी ने अभी तक, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा जो मैंने अभी वो जी पार्ट जी बताया। जी। ठीक है, see, this is my own understanding of Gemini, and I am telling you this in class or teaching you in class only because I've tested it myself. ओके See, without testing, I cannot. ठीक है, at least 3 or 4 charts I should test and confirm. So that is the reason I checked it in live. Books पढ़ी हैं हाँ। Is ma'am stuck? Hello? I think she got disconnected. Yeah, we lost हाँ the recording. Okay, wait. Yeah, I got signed out. Okay. So, किसी ने भी आप में से एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह कभी पढ़ी है? I have ma'am some papers. Okay. Some science background will help over here. Okay. देखो, अगर
महर्षि पराशर को या महर्षि जैमिनी को ज्योतिष को स्पिरिचुअलिटी रिलीजन बेस्ड बनाना होता, जैसा कि लोगों ने बना दिया है, तो फिर प्रिडिक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सी जैमिनी पद्धति में एक एडवांटेज है कि कोऑर्डिनेट्स आर वेरी क्लियर। भ्रातृकारक क्या है, मातृकारक क्या है, पुत्रकारक क्या है, आत्मकारक क्या है, very clear coordinates. You don't need to look at planetary aspects, you don't need to look at tithi, you don't need to look at any panchang, you don't need to look at mrityu bhag, you don't need to look at vargas also. He has made it that easy कि कारक पकड़ लो, उसको घुमाते रहो चार्ट में। ठीक है, हाँ unlike Parashari where you have to mix and match 1,000 parameters to make predictions, you have to travel across Varga charts to reach D60, उसके आगे तो चार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पराशरी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन है। okay Still it is, see, in a way it's easier because it is not operating on high frequencies like Gemini is. Gemini ने क्या किया है, Gemini ने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि देखो ये गणाति कारक है, ये मातृकारक है, पुत्र कारक, एटसेट्रा। ना पंचांग पकड़ो, वर्गास में भी बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं जो वर्गास से देखनी पड़ती हैं, और प्लैनेटरी एस्पेक्ट कंजंक्शन थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन उतना जरूरी नहीं है। द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू हैव टू अप्लाई कोऑर्डिनेट्स और कारकास conditionally, meaning if I'm talking of amatya karak or bhratri karak or putra karak, okay what I will use for personal prediction, how I will apply the same karaka for higher frequency prediction, which karakas are on higher or impersonal frequencies, ये सब चीजें जेमिनी में थोड़ी ट्रिकी हैं। okay ठीक है, हाँ दैट इज वाई जेमिनी को ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। yeah ठीक है, या ये कहो कि वो केतु महाराज ही छुड़वा देते हैं। yeah true इट इज बिकॉज जेमिनी में केतु की तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे गुलाचे बहुत मारने पड़ते हैं, बट एट द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब कि कैलकुलेशन के लेवल पे बहुत इजी है। okay ठीक है, okay एक आपने कारक पकड़ लिया, अब बस देखते रहो कि इसमें कितने लोग फिट हो जाएंगे एक ही कारकत्व में। ठीक है, इट्स हाँ नॉट लाइक अब इसके लिए इस हाउस पे जाओ, कुत्ते के लिए उस हाउस पे जाओ, पापा के लिए इस हाउस पे जाओ, चाची के लिए इस हाउस पे जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। yeah, हाँ, yeah, एक ही I कारक है, understand उसमें सब अम्ब्रेला है ना, ऑल चर हाँ कारकास आर लाइक अम्ब्रेलास, अम्ब्रेला कोऑर्डिनेट्स हैं वो। बट हाउ यू विल यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अमात्य कारक, particularly अमात्य कारक and भ्रातृ कारक, okay okay, when they are applicable, when they are not applicable, you have to arrive through a system of elimination। ठीक है, okay देखो। ओके मुझे मुझे ये समझ खाली वो हम्म, जैसे अभी आपने बताया ना कि अमात्य कारका इज लाइक भ्रातृकारका और उसको सपोर्ट करने के लिए कहाँ से आ रहा है राइट लाइक द नाइन्थ फ्रॉम इट तो ये जो पैटर्न्स है ना it's like हम्म, okay I'm on only on the class 5 video as of now maybe हम्म। there is a little more in the next video देखो, बिगिनर्स क्लास में ना, आपको बिगिनर्स क्लास में आई हैव कवर्ड दिस पार्ट विल बी अंडरस्टूड टू यू बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पराशरी और जेमिनी।
राशियां जो है ना, जो बिगिनर्स वाले कोर्स में जो अभी चल रहा है, उसमें हाँ राशियां जो हैं और प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर्स, ओके all the frequencies are emerging from rashis at the first ओके level, ओके then from planets. See, ओके in Gemini, aspects and conjunctions are not given the kind of importance they are given in Parashari. हाँ या ठीक है? एक तो हम्म पराशरी में everything is positioned vis-a-vis the sun. हम्म ओके, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखनी है तो सन पे चाहिए, योग देखना है तो सन पे चाहिए, ल्यूमिनरीज देखो, अफ्लिक्टेड है, ये सब नौटंकी कुछ नहीं है जेमिनी में, हाँ है ना? एग्जैक्टली जेमिनी में डिग्रीज आर द पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रेंथ, बट डिग्रीज आर ऑल्सो द पैरामीटर्स ऑफ वीकनेस. केतु है ना, देखो केतु इज कॉजिंग अ स्प्लिटिंग इफेक्ट. ओके बाय द वे, व्हाई डज केतु हैव अ स्प्लिटिंग इफेक्ट? why does Ketu have a splitting effect? केतु में स्प्लिटिंग इफेक्ट क्यों है? When we say Ketu gives a splitting effect, why does Ketu give a splitting effect? Hmm. Something to do with the dual nature? But why? I'm asking why. Why does Ketu give a splitting effect? कौन बताएगा? केतु स्प्लिटिंग इफेक्ट क्यों दे रहा है? Ketu is giving splitting effect, Rahu is giving amplification effect. Why? हम्म, हाँ जी. पता नहीं आप लोग महान इंसानों के स्टूडेंट्स हैं, संजय रथ, दीपांशु गिरी, बहुत सारे महान व्यक्ति. क्यों होता है केतु का स्प्लिटिंग इफेक्ट? और केतु क्यों एम्पलीफाई करता है? This is the very basis of Jyotish. Why does Ketu split up anything into two parts? Ketu works on the frequency of 8. तो अगर वहां की फ्रीक्वेंसी 8 पकड़ू तो वहां सामने मर्क्यूरी होता है, तो मर्क्यूरी को स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है, लाइक मल्टीप्लिसिटी डिवाइड. केतु के सामने कौन है उससे नहीं मतलब है, केतु क्यों स्प्लिट करता है? हाँ, आप लोग सोच के बताइए, केतु स्प्लिट क्यों कर देता है?
maybe because Ketu represents a break, sudden break. तो ये मुझे कॉज नहीं है ना उसका, ये कॉज नहीं है, इफेक्ट है। इफेक्ट ये तो इफेक्ट है, दिस इज नॉट द कॉज। व्हाई डज केतु स्प्लिट? मुझे ये क्लास दोबारा लेनी पड़ेगी। चलो आप लोग ना इसको असाइनमेंट मान के चलिए। व्हाई डज केतु कॉज, व्हाई डज केतु स्प्लिट एंड व्हाई डज राहु एम्पलीफाई? ये अगर आपने समझ लिया तो जेमिनी की फ्रीक्वेंसी समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यही आपका असाइनमेंट है। Why does Ketu have a splitting effect and why does Rahu have an amplification effect? ठीक है, ओके। आशा जी, नरेश जी, ओके मैम। ठीक है, आप लोग इसको करके आइए, फिर आपको जेमिनी बहुत तेजी से समझ में आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, प्रिडिक्शन सही जा रहा है, बस इसको ये मुझे बताइएगा नेक्स्ट टाइम, ओके मैम। राइट? अगर अगर हो पाया तो लेट्स सी। आप लोग का कमिंग सैटरडे का क्या शेड्यूल है? मेरा नेक्स्ट सैटरडे संडे बहुत बहुत बिजी है। मंडे को मेरी एग्जीबिशन है, पता नहीं कैसी जाएगी, बट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, तुमने ये क्लास तो कर ही ली है ना, नो प्रॉब्लम, दिस विल बी अ रेपिटेशन ओनली। नेक्स्ट सैटरडे का क्या है आप लोगों का, बाकी लोगों का? मैम आई कैन अटेंड। मैम आई I जस्ट can वांटेड attend. वन थिंग, अगर कुछ लाइक यू नो लाइक वी डोंट स्पीक एंड ओनली यू स्पीक फ्रॉम आत्मकारका टू दरकारका, हमने जो किया है, हाँ, सो वी आर कवर ऑल करना है। म्यूटेड। सॉरी। ओके, ओके, या यू वांटेड टू बी कवर्ड अगेन, राइट? Yeah, like from Atmakaraka to Darakaraka, आपने वो सारे cover किए हैं, and as I said that I still have that fifth class recording to go through. तो या वो आरुद लगन and then everything is understood, but when it's in a sequence फिर वो ना brain download कर पाएगा। हाँ, देखो जेमिनी के साथ एक ट्रिक अपनाइए आप लोग। whatever you study, don't deliberately focus on anything, it will come to you on its own। केतु की टेक्निक है, आपने सुनी कोई चीज, उसके बाद उसको शट आउट कर दीजिए, Okay, ठीक है? देन इट विल कम बैक टू यू लाइक अ रेवलेशन। केतु पे जितना आप फोकस करेंगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा, बिकॉज इट इज नॉट राहु। ओके, okay, सो while doing Gemini be relaxed like केतु। केतु वो है ना, उसको वॉन्डरर, उसको कोई फिक्र नहीं है, ठीक है? सो डोंट ट्राई टू फोकस ऑन द आउटकम, इट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली, okay, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि केतु कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, काम रोक देगा, ये कर देगा, ऐसा वो सब नॉनसेंस है, ठीक है? नथिंग लाइक दैट।
The only protection you can use while doing Gemini is yeah, in fact while doing any kind of Vedic science, it is helpful. आप लोग citrine पहन लेना, मुझे ठीक सूट है? करेगा। माय जुपिटर इज इन द 12th। आई मुझे नहीं पता सन It's राहु के साथ मेरा it's कंपोस्ट। optional। मैं citrine से भी अच्छा है, मैं बताती हूँ। citrine पहनने, कच्ची हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी की गांठ, हाँ हाँ। हाँ हाँ। बस उसको सफेद धागे में लपेटो, गले में डाल लो, गला में, ओके। So that's is it। it okay if I wear it with my Rudraksh? I'm already wearing a Rudraksh. Yeah, see, don't wear any gemstone, no need for citrine, just wear कच्ची हल्दी की गांठ। I have all the bracelets. I just don't have a citrine. I have moonstone. I have what not, black उसकी tournament. जरूरत नहीं है। जो आपको Yeah. एंजाइटी होती है ना, देखो जेमिनी के साथ, जेमिनी सूत्र के साथ इसीलिए लोग भाग जाते हैं क्योंकि उसके साथ एंजाइटी पैदा हो जाती है। मतलब Okay. यू बेरली अंडरस्टैंड समथिंग, केतु और ऊपर चला जाता है, फिर आप पकड़ते हो, फिर वो और ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो इट इज, केतु को इसीलिए माफिया बोलते हैं, क्योंकि माफिया को कोई, आपने एक को पकड़ा, दो और पैदा हो जाते हैं, आपने दो को पकड़ा, नीचे चार और होते हैं। केतु इज लाइक दैट, केतु इज वेरी इवेसिव। तो Okay. उसके साथ इसीलिए एंजाइटी होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आई एम लॉस्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता सब है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इट इज हियर देयर Exactly. एवरीवेयर, है ना? And actually, since the time Gemini this classes started, I am realizing I'm not even studying. मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा है. And rather, I have gone to this book just after Gemini. This is हाँ, Journey of Souls. you will not be able to focus on any book if you are studying Gemini। हाँ, नहीं नहीं दूसरे बुक्स नहीं पढ़ पा रही हूँ. इनफैक्ट इवन आई कैन नॉट स्टडी एनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी. कोई भी हम्म हाँ, बट यू विल बी एबल टू स्टडी अबाउट डेड पीपल, सोल्स। हाँ. So I'm यू विल I'm बी, doing हाँ all books on souls. I don't know what's happening. हाँ, Reading them like या crazy. because see, that is the source of Ketu's knowledge। see, केतु ना, केतु is dead people guiding you। okay, केतु is actually departed people। लिविंग फॉर्म में केतु कुत्ते ही हैं और कुछ नहीं है। सो इफ यू हैव many many dogs around you, they actually denote the energy of people who are between heaven and earth। मतलब कि अदर वर्ल्ड्स, आउटर वर्ल्ड्स और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसके बीच में जो लोग होते हैं उनको सिर्फ कुत्ते देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। तो वो केतु वही होता है, वही एनर्जी है। तो केतु wants to take you away from the physical world towards the dispersed नॉन फिजिकल वर्ल्ड, जहां पे आप कुछ पकड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे आप चीजें पकड़ सकते हैं, वहां पे आप पकड़ नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते हो। यू कैन ओनली सेंस कि somebody, something, some energy is there, but nothing can be seen, क्योंकि वो ब्लैक होल की तरफ ले जाता है ना प्रोग्रेसिवली। सो इसीलिए मर्क्यूरी मार्स, देखो केतु की किसी से नहीं बननी है, किसी भी प्लेनेट से, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड का कारक नहीं है, इसीलिए उसको जेमिनी कारकों में नहीं काउंट किया जाता है। क्योंकि हम जेमिनी धरती पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो राहु तो चलेगा, राहु लेके आता है, लेकिन केतु तो आपको निकाल देगा यहाँ से। सो मटेरियल कारकों में केतु की काउंटिंग नहीं होती है।
wherever Ketu is in your chart, it shows the battle between physical and non-physical realms in your own chart. अगर केतु 6th हाउस में है तो वो बीमारी इसलिए नहीं डायग्नोस होती क्योंकि वो नॉन फिजिकल रेल्म से आ रही है, वो इसीलिए नहीं डायग्नोस होती है। डॉक्टर बेचारा नॉन फिजिकल रेल्म कैसे देखेगा? बोलेंगे भी तो बोलेगा पागल है लड़की। हाँ, वो वही होता है। केतु लगन पे होगा, हेड इज अटैक्ड बाय नॉन फिजिकल एंटिटीज, इसीलिए उसको पिशाच दोष बोलते हैं, मार्स केतु, बिकॉज दे अटैक योर हेड। सेकेंड हाउस में होगा, आपके सेंसरी ऑर्गन्स में किसी एक का बैंड बजेगा, कब बजेगा वो दशा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो केतु जहां पर भी है वहां पे फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच का दरवाजा खड़ा हुआ है, इसीलिए उसको स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिटिंग इफेक्ट, ठीक है। इट सेपरेट्स, व्हाई इट डज सो, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया, ये आप देखिएगा। केतु इज द वेज और द डिवाइड बिटवीन द फिजिकल एंड नॉन, मतलब एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, या तो निकलना है या बचना है। बचना इन द सेंस either you remain here or you cross over। तो केतु को इसीलिए ब्रिज बोलते हैं, केतु कनेक्ट्स द टू realms, material worlds and outer worlds, ठीक है। Okay, ma'am. So I think I will have to revisit this lecture, right? Why? Because it did not get recorded. That's why. नहीं, रिकॉर्डिंग तो हुई है, बट अभी जो मौसमी ने बात बोली है कि कंफ्यूजन हो रहा है सबको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी मीट आई विल शेड्यूल अ बिगर क्लास, लॉन्गर क्लास, ठीक है। नरेश जी, आशा जी, शिवांगी, सब लोग Okay, ma'am. Okay. ओके। if I have to cover everything from the root, from the basics up to this point, I will schedule a 5-hour class. And you will mute us all because then Yeah. yeah, because we need to be on mute all the time. Yeah. I'll start the class at 5 p.m. It might go until 9:30, 10. Okay? Okay, that's okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है? That's okay. Okay, हम बैठेंगे. Just if give us like 5 minutes break after 2 minutes or I mean 2 Yeah, hours or नहीं, so. we will take breaks, 5 minutes, 10 minutes. But we'll, हाँ ठीक है, आप लोग का आइडिया बिल्कुल सही है, वो कर देंगे, ठीक है। Okay, ma'am. Waiting for the class. Okay, चलो, ma'am. ठीक है, Okay. ओके, Okay, चलो, बाय thank you, ma'am. Thank you. बाय Bye, ma'am. बाय, थैंक यू, बाय बाय।